So very good morning to class 11 student of St. Paul High School. So in this video, we will be learning the remaining things that we have left in the part 1. That are the basic terminology of accounting. Yes. So last was stock we have been talking about. The last term was stock. Stock is basically what? If the business is purchasing something to manufacture something, so that particular thing which the business is purchasing from the outside will be known as stock. बोलने का मतलब है अगर कोई बिजनेस है जो ऑपरेट कर रहा है, काम कर रहा है, अगर वो क्या कर रहा है, अगर वो बिजनेस कर रहा है तो उससे रॉ मटेरियल चाहिए होगा, तो रॉ मटेरियल जो खरीदेगा अपने प्रोडक्शन के लिए, raw material that the business will going to buy for the production, that raw material will be his or her business in his business will be termed as stock. तो उस रॉ मटेरियल को हम कहेंगे स्टॉक. फॉर एग्जांपल के साथ समझे थोड़ा इजी रहेगा. एग्जांपल है कि if for example if a furniture maker purchases wood, so that will not be a wood, basically that is a raw material. Why? Because from that wood only the person will going to manufacture what? Furniture. Okay. For example, one more example is there. For example, sugar industry. Which industry? Sugar industry. Sugar industry will going to buy what? Will going to buy sugar cane. उन्हें क्या खरीदना पड़ता है? शुगर केन खरीदना पड़ता है. वो शुगर केन क्यों खरीद रहे हैं? ताकि वो मैन्युफैक्चर कर सके. क्या कर सके? मैन्युफैक्चर कर सके क्या? शुगर. So purchasing of sugar cane from the farmers will be considered as raw material, and that raw material will be considered as stock for them. Okay, just a general sense I'm talking. Okay. So this was the last topic, and today we'll be talking about. There are so many terms today also. The number one is revenue. Okay, don't worry about the note. I'm not going to write anything here. I will be sending the notes in the group only so that you can understand if you have any problem, okay, or any queries. If you have, you can ask. Number one is revenue. क्या बात करें? Revenue. Revenue क्या होता है basically? Revenue is basically the sales. Revenue क्या होता है basically the sales. If the business is purchasing a raw material, manufacturing it and selling it in the market, and the money that the money that the business will going to earn from that sale proceed will be known as revenue. Revenue क्या होगा एक बार फिर से समझ लीजिए. कोई भी बिजनेस रॉ मटेरियल खरीदा, मैन्युफैक्चर किया गुड और मार्केट में बेच दिया. ठीक है. मार्केट में बेचने से क्या होगा? मार्केट में बेचने से उसको इनकम होगा फर्म को, तो वो दैट इनकम विल बी नोन एज व्हाट? दैट इनकम विल बी नोन एज रेवेन्यू. आउट ऑफ दैट और एक बात है, एक मिसकंसेप्शन हो सकता है आपको. देखिए, फॉर एग्जाम्पल इफ अ बिजनेस इज देयर एंड दैट बिजनेस सोल्ड एन एसेट, ओल्ड एसेट एग्जिस्टिंग इन द बिजनेस, इज दैट अ रेवेन्यू फॉर अ बिजनेस? गेन तो पैसा मिलेगा, पर उसे हम रेवेन्यू कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि इफ यू वांट टू कंसीडर रेवेन्यू, मैंने क्या बोला, आपको गुड्स खरीदना पड़ेगा, कुछ मैन्युफैक्चर कुछ काम करना पड़ेगा, फिर आप बिक्री करोगे. ये सुनो, और ये क्या होगा? एक बार करोगे? नो, दिस हैज टू बी रेगुलर इन नेचर. हर बार करोगे कि नहीं करोगे? तो इसलिए रेवेन्यू क्या होता है? रेगुलर इन नेचर. ऐसा इनकम जो आपको रेगुलरली होगा. कैसे? गुड्स कुछ खरीद के मैन्युफैक्चर करके बेच के. हर बार ऐसा नहीं करता बिजनेस, कभी कभी रेडीमेड गुड भी बेचता है. फॉर एग्जाम्पल इफ शोरूम इज देयर, अ बाइक शोरूम और कार शोरूम, देयर इज ऑलरेडी अ रेडीमेड प्रोडक्ट इज देयर. यस और नो? ऑलरेडी रेडीमेड है, बस उसको कस्टमर चाहिए. यस और नो? सो इन दैट केस इज ऑल्सो द रेवेन्यू इज देयर, बिकॉज द डीलिंग विल बी अ रेगुलर इन नेचर. यस. उसके बाद हम बात करते हैं एक्सपेंस. क्या बात करें? एक्सपेंस. What is expense basically? Okay. Expense is basically the extra amount that we pay while we purchase the raw material. मतलब raw material जब भी हम खरीदते हैं, तो उस raw material खरीदने में हम जो extra amount पे कर रहे हैं, किसको? raw material से related होते हैं basically expenses. तो इनको कहते हैं हम expenses. For example, if you purchase a large amount of goods, आपने बहुत सारा सामान खरीदा, तो आप तो उठा के नहीं लाओगे, आप तो मालिक हो. आपको लेबर्स हायर करने पड़ेंगे ताकि वो जगह से आपके फैक्ट्री तक सामान लेके आए. तो उनको वो क्या फ्री में काम करेंगे? नो, यू हैव टू पे देम व्हाट? यू हैव टू पे देम वेजेस. ये सुन, आपको उनको वेजेस देना पड़ेगा. उसके बाद आते ही क्या काम हो जाएगा? वहां पे फिर उन लोग को सबको सामान लेके भी जाना पड़ेगा. सो देयर आर आल्सो सो मेनी एक्सपेंसेस दैट इज रिलेटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स. सो दोज एक्सपेंसेस विल बी नोन एज, सो दोज थिंग्स बेसिकली विल बी नोन एज एक्सपेंसेस. एक्सपेंसेस का बेसिक मतलब ये है जब हम सामान द थिंग्स दैट आर रिलेटेड विद द प्रोडक्ट एंड विच वी हैव टू इनकर्ड इन
money will be known as expenses. मतलब वो सामान से खरीदने से रिलेटेड होते हैं एक्सपेंसेस. क्या होता है? सामान से खरीदने से रिलेटेड, और वो सामान को मैन्युफैक्चरिंग करने का प्रोसेस में भी कुछ पैसा खर्चा होता है आपका, तो उससे भी हम कहेंगे एक्सपेंसेस. उसके बाद हम बात करें एक्सपेंडिचर. क्या बात कर रहे हैं? एक्सपेंडिचर. एक्सपेंडिचर एंड एक्सपेंस बोथ सीम्स सिमिलर बट देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस? यू हैव टू अंडरस्टैंड. एक्सपेंडिचर क्या होता है बेसिकली? इन एक्सपेंडिचर यू सी यू आर आल्सो स्पेंडिंग मनी, इन एक्सपेंस ऑल्सो यू आर स्पेंडिंग मनी. मतलब दोनों में आपका पैसा खर्चा होगा. पर एक्सपेंस क्या होता है? रेगुलर इन नेचर. एक्सपेंस क्या होता है? रेगुलर इन नेचर. आपको सामान हर बार खरीदना है, हर बार लेके आना है, तो आपको वेजेस देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? और जो लेबर्स वहां पर वो आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम कर रहे हैं, जो डेली बेसिस में उनको वेजेस दिया जाता है आपको, तो वो भी वेजेस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सपेंसेस. ओके, सैलरी इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज एक्सपेंसेस बट दैट इज ऑफ इनडायरेक्ट नेचर. अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होता है आप समझेंगे, ठीक है. एंड हियर एक्सपेंडिचर वी आर टॉकिंग. एक्सपेंडिचर क्या होगा? रेगुलर इन नेचर नहीं होगा, पर ऐसा एक्सपेंस जिससे हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट हो. एंड एक्सपेंसेस आर फॉर शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स. एक्सपेंसेस आर फॉर शॉर्ट टर्म बेनिफिट बट एक्सपेंडिचर आर फॉर लॉन्ग टर्म बेनिफिट. फॉर एग्जाम्पल, इफ अ बिजनेस परचेज अ मशीनरी. बिजनेस ने क्या खरीदा? मशीनरी खरीदा. So from that machinery, the business will going to earn profit or not? The business earning capacity will increase or not? So it will be known as expenditure. मतलब ऐसा खर्चा अगर कोई बिजनेस करे जिसके द्वारा बिजनेस का क्या हो? बिजनेस का प्रॉफिट इंक्रीज हो, तो उसे हम कहेंगे एक्सपेंडिचर. उसके बाद हम बात कर रहे हैं लॉस. नाउ व्हाट इज लॉस? बेसिकली व्हेन यू हैव मोर एक्सपेंसेस देन इनकम. व्हेन आफ्टर 1 year, 1 साल हो गया आपका, और आपने देखा, क्या देखा आपने? द इनकम्स आर लेस और द रेवेन्यूज आर लेस बट योर एक्सपेंसेस आर मोर. सो इन दिस केस व्हाट हैज बीन, आपके पॉकेट से ज्यादा पैसा गया है बाहर, आया नहीं है, तो इस केस में क्या होगा? इस केस में होगा लॉस. उसके बाद बात करें प्रॉफिट. नाउ व्हेन प्रॉफिट कम्स, प्रॉफिट कम होता है बेसिकली, व्हेन प्रॉफिट कम्स नहीं, सॉरी, व्हेन प्रॉफिट ऑकर इन द बिजनेस. Actually, this is the thing that when incomes or revenues are more and the expenses are less, the gap between the expense and the revenue will be known as profit. ऐसे ही कुछ लॉस के साथ भी होता है, आपको तो पता ही होगा. उसके बाद ये जनरल थिंग आपको पता होना चाहिए. उसके बाद हम बात करें इनकम. इनकम इज रेगुलर इन नेचर. इनकम इज रेगुलर इन नेचर, मतलब होता रहना चाहिए ताकि आप वो बिजनेस क्या कर सके? अच्छे से रन कर सके. जब भी आपको सामान बेच रहे हो, आपको एक इनकम हो रहा है कि नहीं हो रहा है सर्टेन काइंड ऑफ बिजनेस को, तो वो हम कहेंगे इनकम. अब गेन बात कर रहे हैं. गेन हमेशा सेकंड हैंड गुड पे होता है. गेन हमेशा किस पे होता है? सेकंड हैंड गुड पे होता है. जब भी कोई बिजनेस एक्जिस्टिंग सामान है, कोई मशीनरी हुआ, कोई लैंड हुआ, कोई कार हुआ, उसे बिजनेस ने क्या किया? सोल्ड आउट कर दिया मार्केट में थोड़े ज्यादा प्राइस में. तो जो थोड़ा गेन हो रहा है, तो थोड़ा ज्यादा क्या हो जाएगा? गेन हो जाएगा. सो दैट विल बी गेन, नॉट इनकम. अगेन इनकम होता है फर्स्ट हैंड गुड पे, गेन होता है सेकंड हैंड गुड पे. इज अ बेसिक डिफरेंस. आफ्टर दैट वी विल बी टॉकिंग अबाउट डेटर्स. नाउ व्हाट इज डेटर्स? एक्चुअली डेटर्स भी बोलते हैं कुछ, मैं डेटर्स बोल रहा हूँ, नो प्रॉब्लम इन दैट. सो व्हाट इज डेटर्स? एक्चुअली डेटर्स आर द पर्सन फ्रॉम whom we will get money. ऐसे नहीं मिलेगा आपको पैसा, आपने सामान बेचा है उनको एक्चुअली, ठीक है. एक्चुअली डेटर्स आर द पर्सन who have taken credit, who have taken goods on credit and you have to receive money from them. हिंदी में आसानी से समझिए. अगर कोई इंसान आता है आपके पास, पैसा नहीं है उसके पास, पर वो सामान लेके चला गया, पैसा दिया नहीं दिया, सामान सिर्फ लेके चला गया, पैसा देगा कि नहीं देगा? ऑफ कोर्स देगा. तो वो पैसा अभी देगा नहीं, बाद में देगा ना. तो वो पैसा जब देगा, पर उस इंसान से आप पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आपको मिलेगा. तो उस इंसान को आप बोलोगे डेटर, वो मेरा डेटर है. जिस इंसान से आपको पैसा मिलना है, ऐसे मिलेगा नहीं, सामान बेचने के रेस्पेक्ट में, क्योंकि आपने सामान बेच चुके हो, पैसा रिसीव नहीं किया, तो उसे हम कहते हैं डेटर. समझ में आया होगा. उसके हम बात करते हैं क्रेडिटर क्या होता है ना. व्हाट इज क्रेडिटर? बेसिकली नाउ क्रेडिटर आर बेसिकली द पर्सन फ्रॉम होम वी हैव टेकन क्रेडिट, जिससे हमने बाकी में सामान खरीद के आया है, पर उसको तो पैसा, सामान तो आ गया हमारे पास, पैसा दिया हमने पैसा नहीं दिया, पैसा तो देना पड़ेगा. सो द पर्सन विल बी नोन एज क्रेडिटर टू whom we will going to pay, creditor. After that we are talking about receivable. क्या बात कर रहे हैं हम? Receivable. Now what is receivable? Basically
कुछ कुछ बिजनेस खाली अब देखो डेटर्स का कॉन्सेप्ट तो ठीक है, पर क्या होता है डेटर्स में ना बहुत कुछ कुछ ऐसे इंसान होते हैं जो बाकी तो ले लेते हैं, फिर पैसा चुकाने में एक कर दूंगा कर दूंगा कर दूंगा। तो इसको सॉर्ट आउट करने के लिए बिजनेस ने एक बहुत अच्छा चीज बनाया है, उसको बोलते हैं बिल्स रिसीवेबल। क्या बोलते हैं? बिल्स रिसीवेबल। ओके, सो इन दिस बिल्स रिसीवेबल व्हाट हैपन एक्चुअली, द पर्सन डेटर आएगा आपसे सामान खरीदेगा, पर आप उसको ऐसे ही जाने नहीं दो, उसको आप एक कॉन्ट्रैक्ट जैसा चीज साइन कराओगे। ठीक है, ये क्या होता है सर ये कॉन्ट्रैक्ट जैसा चीज, आप समझोगे एक चैप्टर ही। ठीक है, डोंट वरी, you will write, actually you have to make, the person who is selling the good, the person has to make a bill receivable. okay, ये क्या होता है bill receivable समझे, एक बिल जैसा चीज बनाएगा, उसमें लिखेगा अमाउंट, लिखेगा डेट, लिखेगा सब कुछ मेंशन करेगा, उसका नाम भी मेंशन करेगा, और उसके बाद वो उससे सिग्नेचर कराएगा। किसे सिग्नेचर कराएगा? जो जो गुड्स खरीद के जा रहा है, और वो भी सिग्नेचर करेगा और स्टैम्प पेपर लगा देगा। आफ्टर डूइंग सो सिग्नेचर, आफ्टर एग्रीइंग, एक्चुअली उसमें लिखा होता है कि वो इंसान कब पैसा देगा। आप उससे पूछोगे कब पैसा देगा, 1 महीना बाद, 2 महीने बाद, कितना महीने बाद, इसका ज्यादा महीने का नहीं होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि 2 साल बाद नहीं, बिल रिसीवेबल विद इन 1 ईयर का होता है। ठीक है, तो 6 मंथ 5 मंथ जितना भी आप लिखोगे, अमाउंट लिखोगे, डेट लिखोगे, कौन सा दिन को रिसीव होगा, सिग्नेचर कराओगे, आप भी करोगे सिग्नेचर, उससे भी सिग्नेचर कराओगे, फिर एक स्टैम्प पेपर लगाओगे, फिर बन गया वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। दिस विल बिकम अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, एंड बिकॉज ऑफ दैट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट व्हाट विल हैपन, अगर वो उस दिन पैसा नहीं देता, आप उसको कोर्ट में लेके जा सकते हो। अच्छा है, क्योंकि डेटा के केस में क्या, मैं कर दूंगा आप उसको फिर केस करो, थोड़ा सा मेरा कॉम्प्लिकेशन ज्यादा होता है। पर इन दिस द बिल रिसीवेबल यू हैव अ प्रॉपर डॉक्यूमेंट सो दैट यू कैन सू दैट पर्सन मतलब क्या, उसके ऊपर आप केस लगा सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम बात करें पेएबल्स, द अमाउंट ऑफ विच द अमाउंट ऑफ द बिल विच वी हैव टू पे विल बी नोन एज बिल्स पेएबल। मतलब आप गए किसी के पास, आप सामान लेके आए और बिल रिसीवेबल साइन करके आए, आप साइन करके, आपको मिलेगा नहीं इसमें, आप साइन करके आओगे और एग्री करके आओगे कि मैं इस दिन पैसा दूंगा, तो आपको पैसा देना पड़ेगा उस दिन को। तो आप जो साइन करके आए बिल में, वो आप उसके बदले, वो साइन करने के बदले में आपको पैसा देना है कि नहीं देना है? ऐसे पैसा नहीं दे रहे, आप सामान खरीद के आओ इसलिए आप पैसा दे रहे हो, इसलिए क्या है बिल्स पेएबल। ठीक है, अब हम बात करें प्रोपराइटर। क्या बात करें? प्रोपराइटर। नाउ हु इज अ प्रोपराइटर? प्रोपराइटर इज द ओनर। प्रोपराइटर किसे कहते हैं? प्रोपराइटर ओनर को कहते हैं। ओनर का अलग अलग नाम होता है। ओनर को कभी हम एंटरप्रेन्योर भी बोलते हैं अपने बिजनेस के टर्म्स में। ठीक है, प्रोपराइटर, ओनर, और एक वर्ड था मैं भूल गया, प्रोपराइटर, ऑनर, एंड वन मोर वर्ड इज देयर, याद नहीं। ठीक है, 2 वर्ड अगर समझ लें, प्रोपराइटर एंड ओनर। बेसिकली इट इज अ पर्सन हु एक्चुअली इन्वेस्ट मनी इन द बिजनेस एंड हु इज एक्चुअली डूइंग द बिजनेस, उसे कहेंगे क्या? प्रोपराइटर। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, 24 नंबर हम पहुंच गए, देखो बात करते करते। नंबर 24 is drawings. What it is? Drawings. Now, what is drawings basically? Okay. Drawings are basically the amount. The drawing is basically the amount or good. समझिएगा अच्छे से। Drawing क्या है? Drawing इधर नक्शा नहीं है, इधर drawing क्या है? Drawing is the amount or good withdrawn by proprietor for personal use. खुद के यूज के लिए, बिजनेस के पर्पस के लिए नहीं, बिजनेस के यूज के लिए नहीं, फॉर योर ओन गुड, for your own benefit. if the owner, अगर ओनर पैसा निकाले, सामान निकाले या बिजनेस, तो हम कहते हैं ड्राइंग। ठीक है, इन डेफिनेशन के लिए ठीक है, अब अच्छे से समझे इसको। प्रोपराइटर क्या क्या निकाल सकता है और वो कब कहलाएगा ड्राइंग? पैसा निकाला, क्या निकाला? पैसा निकाला फॉर पर्सनल यूज, ड्राइंग कहलाएगा। सामान निकाला, बिजनेस से सामान निकाला फॉर पर्सनल यूज, ड्राइंग कहलाएगा। बिजनेस का कार, वैन, जो भी है, यूज किया फॉर पर्सनल यूज, ड्राइंग कहलाएगा। बिजनेस का जगह यूज कर रहा है फॉर पर्सनल यूज, खुद रह रहा है कुछ भी अलग, तो वो भी कहलाएगा ड्राइंग। और एक होता है बिजनेस के पैसे से अपना लोन, उसका लोन है पर बिजनेस का पैसे से वो मीट कर रहे हैं, मतलब पे कर रहे हैं, तो वो भी कहलाएगा ड्राइंग। ओके, अब हम बात कर रहे हैं वाउचर्स के बारे में। ना व्हाट इज वाउचर? बेसिकली वाउचर आर द एविडेंस ऑफ द जर्नल एंट्री। क्या होता है जर्नल एंट्री और वाउचर क्या होता है? देखो, आप कभी भी कोई भी सामान खरीदते हो, आपको एक कैश मेमो मिलता है कि नहीं मिलता? इफ यू गो टू ए प्रॉपर स्टोर, द स्टोर कीपर विल गोइंग टू प्रोवाइड यू प्रॉपर कैश मेमो। ओके, इसमें लिखा होगा दाम, सामान, सब कुछ। तो अकाउंटिंग जब भी हम करेंगे, बिना वाउचर्स का बात ही नहीं होगा, बिकॉज दिस वाउचर आर द एविडेंस ऑफ द प्रूफ दैट द ट्रांजेक्शन हैज बीन डन और नॉट।
आफ्टर दैट सेकंड लास्ट टॉपिक में पहुंचे हम अकाउंटिंग ईयर. नाउ व्हाट इज अकाउंटिंग ईयर? अकाउंटिंग ईयर इज ऑफ 12 मंथ्स. अकाउंटिंग ईयर कितने महीने का होता है? 12 मंथ्स का होता है. ठीक है. सो 12 मंथ्स का कब से कब तक हो सकता है सर? जनवरी टू दिसंबर हो सकता है पहला. दूसरा सर, दूसरा हो सकता है आपका अप्रैल, 1 अप्रैल टू नेक्स्ट ईयर 31 मार्च. द गैप ऑफ 12 मंथ्स द बिजनेस इज डूइंग द बिजनेस विल बी नोन एज अकाउंटिंग ईयर. 12 महीने का रहता है अकाउंटिंग ईयर. जनवरी टू दिसंबर भी होता है, अप्रैल 1 अप्रैल टू नेक्स्ट ईयर 31 मार्च भी होता है. ठीक है. गवर्नमेंट का जो अकाउंटिंग ईयर होता है, जो गवर्नमेंट हिसाब करती है, वो ये होती है 1 अप्रैल टू 31 मार्च. ठीक है. अब हम बात करें एंट्री. एंट्री मतलब इधर जर्नल एंट्री के बारे में बात करें. इट हैज टू साइड डेबिट एंड क्रेडिट. कैसे होती है ये थोड़ा मैं सस्पेंस में छोड़ के जा रहा हूँ, बिकॉज इन द नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो विल बी लर्निंग हाउ टू डू जर्नल एंट्री. ओके, तो थोड़ा सस्पेंस बना रहे तो थोड़ा अच्छा रहेगा. सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. आई होप आपको समझ में आया होगा. इफ स्टिल यू हैव एनी प्रॉब्लम और एनी डाउट, you can please comment me directly so that I can help you as soon as possible. Thank you.